Welcome to all my dear students for BSc second year. Now next chapter MCQ questions of electrophilic substitution reaction in aromatic compound. The group that deactivate the benzene ring for electrophilic substitution reaction is first option methyl group, B is the chloride, C is the OH group, D is the NH2 group. तो मिथाइल CH3 provide plus H effect, Cl provide minus I effect, OH also provide plus M effect, NH2 also provide plus M effect. That is, chlorine is a deactivating group. When it present on benzene nucleus, that will deactivate the ring due to minus I effect. Is the most important question. It is ortho and para directive but deactivating. Second question है, when nitrobenzene is treated with bromine in presence of ferric bromide, the main product is metabromobenzene. Statement related to obtain the meta isomer. The electron density on meta carbon is more than that ortho and para position. The intermediate carbohydrate formed often initial attack of bromonium ion at the meta position is least destabilized. C option है loss of aromaticity when bromonium ion attack at the ortho and para position and not at meta position. D option है none of these. इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत हैं, but more correct answer will be A. The electron density on meta carbon is more than that of ortho and para position. It is better when electron density decreases at ortho and para position. Therefore, attack of electrophile possible at meta position. That is, answer A is correct. Next question. The compound is most reactive towards electrophilic nitration is benzoic acid, toluene, benzene, नाइट्रोबेंजीन. पहले भी बताया जा चुका है कि एरोमेटिक न्यूक्लियस से जब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है. इसलिए बेंजोइक एसिड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए डीएक्टिवेटिंग, टॉल्यूइन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन इज फ्री फ्रॉम एक्टिवेटिंग, नाइट्रोबेंजीन आल्सो contains nitro group as a deactivating. Therefore, option B is correct. Formation of di-substituted derivative from mono-substituted benzene result in the following number of isomer. A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. तो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में आर्थो, मेटा एंड पैरा देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. Therefore 3 isomer are possible. Answer C is correct. Anhydrous aluminum chloride is used in the Friedel-Crafts reaction because electron rich, electron deficient, soluble in ether, neither electron rich
nor electron deficient. Anhydrous AlCl3 is act as a Lewis acid catalyst. Lewis acid have tendency to accept electron pair. Therefore, it is electron deficient species. Answer B is correct. Alkyl group are ortho and para directive because of plus I effect plus R effect. R effect through hyperconjugation. All of these. So methyl group also provide plus I, also provide plus R effect. R effect through hyperconjugation. All of these. पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ही जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, जो आपको पहले बताया गया है. लेकिन एल्किल ग्रुप आल्सो प्रोवाइड प्लस आर इफेक्ट. अगर ओनली प्लस एच इफेक्ट होता तो वह करेक्ट होता, इसलिए सारे मिलते जुलते हैं, इसलिए ऑल करेक्ट होंगे. आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप आर जनरली एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, न्यूट्रल ग्रुप, नन ऑफ दिस. तो आर्थो पैरा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टिवेटिंग. डीएक्टिवेटिंग में केवल हैलोजन एटम ही होता है जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है. लेकिन अगर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बोथ होता तब हम आंसर लिख सकते थे. नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूमिन टेक्स प्लेस एट आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, बोथ आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें आपका ये होगा कि नाइट्रेशन जो होता है टॉल्यूमिन का, तो टॉल्यूमिन में मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होगा. आंसर सी इज करेक्ट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल टेक्स प्लेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन ओनली, आर्थो पोजीशन ओनली. तो फिनाल में स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप OH लगा है बेंजीन रिंग पर, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता. विच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेट्स बेंजीन सब्स्टिट्यूशन? OH, NHR, OR, COOR. OH also activating group, OR also activating, NHR also activating, COOR एस्टर ग्रुप है, इसलिए यह CO से जुड़ा है बेंजीन रिंग डायरेक्टली, तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा. आंसर डी करेक्ट. द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज. इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ एरोमेटिक सल्फोनेशन या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सल्फोनेशन. क्वेश्चन ठीक है, छोटा है. द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, पहले से बताया जा चुका है, सल्फर ट्राईऑक्साइड. यही नहीं, आपको पांचों में से एक कंपलसरी है मिलना. इलेक्ट्रोफाइल ऑफ हाइलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. तो हाइलोजिनेशन में हाइलोनियम आयन बनता है, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन बनता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्किल केटाइन बनता है और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिल केटाइन बनता है. ये आप जरूर करें, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलना है. द क्लोरीन एटम अटैच टू बेंजीन इज आर्थो डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिव, आर्थो पैरा डायरेक्टिव एंड डीएक्टिवेटिंग. तो क्लोरीन एटम आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है पर डीएक्टिवेटिंग होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एनिलीन एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है स्ट्रांगली, टॉल्यूमीन एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग लगा है, फिनाल एक्टिवेटिंग लगा है, इसलिए आंसर बी सही होगा, नाइट्रोबेंजीन. द एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ एन H2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग
substitution is due to hyperconjugation, resonance, lone pair of electron, D inductive effect। तो NH2 ग्रुप पहले से पता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, लोन पेयर एक्टिवेट थ्रू रिंग, लोन पेयर involve for the delocalization of pi electron which increases electron density at ortho and para position। That is answer B is correct। In Friedel-Crafts reaction the electrophile is कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्रीडल, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दिस। तो एल्किल केटाइन बनता है, ऑप्शन सी कार्बोकेटाइन होगा। एमंगस द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, Cl है, C6H5 फिनाइल है, OH है, Br है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप OH है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, आंसर बी इज करेक्ट। बेंजीन is converted to toluene by Grignard reaction, Perkin reaction, Friedel-Crafts reaction, Oates reaction। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराया जा सकता है, लेकिन उससे मोर करेक्ट है परकिन रिएक्शन से नहीं बनता है टॉलुइन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से एल्काइलेशन करा दें तो टॉलुइन बन जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। बेंजीन रिएक्ट विथ एन प्रोपिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली AlCl3 to give आइसोप्रोपिल बेंजीन, एन प्रोपिल बेंजीन, 3 प्रोपिल 1 क्लोरोबेंजीन, नो रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, when benzene is treated with propyl chloride, electrophile is propyl cation which have tendency to undergo rearrangement and gives isopropyl carbocation, therefore isopropyl benzene is formed, that is also called cumene। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको इसमें और बढ़ाना है। बढ़ाने में आपको लाइट की प्रेजेंस में टॉलुइन का हैलोजिनेशन अगर कराया जाए और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर हैलोजिनेशन टॉलुइन का कराया जाए तो दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। लाइट के प्रेजेंस में साइड चेन रिएक्शन बनता है, बेंजिल क्लोराइड बनता है, और कैटालिटिक प्रेजेंस में विदाउट लाइट तो ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन कराने पर आर्थो एंड पैरा हेलो टॉलुइन बनता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखिएगा, कॉपी में होगा, पढ़ाया गया है सब। थैंक यू।